Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we do the external characters and the life cycle of the Fasciula hepatica, which will help you in understanding the character of this phylum. Fasciula hepatica, we also name it as an sheep liver fluke, and it lives in the bile duct of the sheep. This is external morphology. They have this is the head lobe कह सकते हैं या इसको हम cephalic lobe भी कह सकते हैं. They have an sucker at the anterior end and they have a mouth at the anterior end, and mouth is surrounded by this sucker. Then there is another sucker which is present on the ventral side. We also name it as an acetabulum. And on the ventral side you will also see the genital pore. Genital pore is just present above the acetabulum is there. Then there is on the ventral side there is present an excretory pore. This is the external character. This is the head lobe, or you can also say cephalic lobe, and this is the anterior sucker is there. ठीक है ना, within the sucker there is present a mouth is there. If we go into the structure of its body, then its outer covering is that of the cuticle, then comes the muscles, then comes the parenchyma. If you will take like this is the outer covering, that is of cuticle. It is not made up of cells are there. Below the cuticle there is present a muscular layer, then the space between the body wall and the intestine is filled with that of the parenchyma. Is there. So there is no coelom. So this animal is acoelomate. They have a bilateral symmetry. You can divide the animal into two equal half only from a one plane that pass through the center is there. So they have a bilateral symmetry is there. Animals belonging to the platyhelminthes, they have a bilateral symmetry. They are triploblastic and they are acoelomate is there. And this is its digestive system. This is mouth, esophagus, pharynx. Pharynx is muscular. Then that intestine divided into two parts. These are a sort of ceca-like structure, ceca or outgrowth of from the intestine. We also name it as an ceca. Cecas भी कह देते हैं, CAECA, ceca, where the digestion of the food will take place. Digestion of that food is extracellular. It is taking place in the lumen of the intestine. Like this is the, if I enlarge this part or enlarge this part, these are the cell, this is the lumen, and digestion is taking place in this region. That's why we say it is an extracellular digestion is there. And this is an excretory system is there. This is excretory system. There are large number of protonephridias are there. If you will see the individual structure of the protonephridia, it is like this, and they have this long cilia, flame cilia बोल देते हैं. We even name protonephridia as a flame cells. What they do, they collect the waste material from this area and transfer it into a median excretory canal. ये एक सारे के सारे आप देख रहे हो, जितने भी ये जो फ्लेम सेल्स हैं, ये सारे के सारे ओपन कर रहे हैं into a median excretory canal, and that open out by the excretory pore. In the digestive system, you see they have a mouth, but they do not have any anus, so that's why they have an incomplete digestive tract is there. And this is the structure of the you can say this is a structure of reproductive system. These are the two testes. Are there. From the testes arises the vas deferens, and there it joins together to form the seminal vesicle. Then seminal vesicle से आगे यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पे आप बेसिक सा ही समझिए. seminal vesicle आएगा ये, where that these two vas deferens meet, then it leads to a seminal vesicle. Seminal vesicle leads to cirrus. This cirrus is used for transferring the sperm is there. So there are two testes. From the testes arises the vas deferens. They meet and they form the seminal vesicle where they meet. Then there is a cirrus is there. This is a brief I am giving which is sufficient at the +2 level is there. ठीक है, oh sorry, +1 level. ठीक है. Then there is a single ovary is there. From the ovary arises the oviduct, and there is a small canal. That canal is called as a Laurel's canal is there. Then these are the Wittline ducts, Wittline glands. These are the Wittline duct. ठीक है ना, ये सारे के सारे Wittline gland साइडों में चल रहे हैं, और यहाँ से एक ट्रांसवर्स Wittline duct आती है जो कि एक पॉइंट पे मीट कर जाती है. उसी पॉइंट पे ओविडक्ट भी मीट करती है, और उसी कॉमन पॉइंट से यूट्रस भी निकलती है, और ये यूट्रस भी जेनिटल पोर पे आके खुलती है.
सिरस भी जेनिटल पोर में आके खुल रहा है और ये यूट्रस भी जो है जेनिटल पोर पे आके खुलती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, टू टेस्टिस vas deferens they meet together to form the seminal vesicle. Seminal vesicle leads to cirrus and cirrus open into the genital pore. Genital pore जो मैंने पीछे अभी आपको बताया है कि यहाँ पे आपने देखा कि this animal has genital pore just above the acetabulum. And then there is a single ovary, oviduct is there. These are large number of vitelline glands which are present on the side. From that arises this transverse vitelline duct. They meet. Suppose this is the ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट, दिस इज ओवरी ओविडक्ट। देख एक कॉमन पॉइंट जो बनता है जहाँ पे ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया और ये ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट आ गई, इधर से ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट आई, इधर से ट्रांसवर्स विटलाइन डक्ट आई, ये ओविडक्ट आई, ये यूट्रस आ गई। दिस कॉमन पॉइंट इज सराउंडेड बाय ए महलीज ग्लैंड इज देयर, दिस इज ए महलीज ग्लैंड्स आर देयर, ठीक है। दिस इज द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी self-fertilization or a cross-fertilization. In cross-fertilization, what happens? Another worm will insert its genital pore into the Laurel's canal. कोई दूसरा worm आता है, वो इसके अपने genital pore को Laurel's canal में insert करता है और उसके जो सिरस है, सिरस जो है वो स्पर्म शेड कर देता है ओविडक्ट में। फिर से बता रहा हूँ, दूसरा वर्म जो है अपना जेनिटल पोर यहाँ पे इंसर्ट करता है और सिरस जो है वो सिरस जो कि आपको मैंने बताया कि वास डेफरेंस मीट करते हैं, फिर सेमिनल वेसिकल बनती है और सेमिनल वेसिकल के आगे क्या बनता है, सिरस बनता है, तो वो उसके अंदर स्पर्म शेड कर देता है। उधर से एग आता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ओविडक्ट में होती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि ये एनिमल जो है दे लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ द शीप, सो इट इज एन एंडोपैरासाइट। इट फीड्स ऑन द blood, it feeds on the bile, it feeds on the cells of the bile duct. You see the distribution is there. This is the liver, this is the bile duct, this is the pancreatic duct, then this is the hepatopancreatic duct बनती है। ये bile duct आ गई, यहाँ से pancreas से duct आती है pancreatic duct, फिर यहाँ पे hepatopancreatic duct बोल देते हैं हम, hepatopancreatic duct। ये जो है फेस्यूला हेपेटिका बाइल डक्ट में रहता है। ये बाइल को फीड करता है जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ब्लड पे फीड करता है, इवन सेल्स ऑफ द बाइल डक्ट पे फीड करता है। ये लीवर को डैमेज करता है एंड दिस इज ए हार्मफुल फॉर द शीप इज देयर। ये पैरासाइट है, इट इज दिस पैरासाइट इज सीन विद इन द बॉडी ऑफ द शीप, दैट्स वाई वी नेम इट एज एन एंडोपैरासाइट इज देयर। अब ये हो गया जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन होगी है कि जाइगोट बन गया, जाइगोट के आसपास योग सेल इकट्ठे हो जाते हैं। ये योग सेल कौन सेक्रीट करेगा? विटलाइन ग्लैंड सेक्रीट करेंगे। दीज आर द न्यूमरस विटलाइन ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफ्री, यहाँ से ट्रांसफर्स निकलते हैं और ये इसके आसपास एक वॉल बन जाती है जिसको मैं कैप्सूल का नाम देता हूँ। आई नेम इट एज एन कैप्सूल इज देयर, ठीक है ना, कैप्सूल बन जाता है, ठीक है। अब ये कैप्सूल मैंने कहा कि ये जो मेल और फीमेल है कहाँ पे रह रहे हैं? बाइल डक्ट में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कैप्सूल जो बन जाएगा, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एग आया, स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया। जाइगोट जब यहाँ तक पहुँचता है तो उसके आसपास योग सेल आ जाएंगे और कैप्सूल बन जाएगा और कैप्सूल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस के अंदर कैप्सूल ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यूट्रस और जेनिटल पोर से कैप्सूल बाहर आ जाते हैं। जेनिटल पोर से कैप्सूल बाहर आ जाते हैं और दे फॉल इनटू द, ठीक है ना, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में गिरते हैं कैप्सूल, बाइल डक्ट में कैप्सूल गिरेंगे, ठीक है ना। और बाइल डक्ट में कैप्सूल जब गिरेंगे तो अल्टीमेटली ये देखो, ये जो कैप्सूल जो थे बाइल डक्ट में आ गए, बाइल डक्ट से ये आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आते आते अलॉन्ग विद द फीकल मैटर ये बाहर आ जाएंगे। वो जो गोबर वगैरह देती है उसमें आपको उसके कैप्सूल देखने को मिलेंगे। कैप्सूल जो है नॉर्मली जो फीकल मैटर इफ़ इट इज़ लेड नियर एनी वाटर बॉडी, तो ये जो कैप्सूल है वो जब पानी में एंटर करता है तो एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। उस लार्वा को मैं कहता हूँ मीरासीडियम। दिस इज़ ए सिंपलर डायग्राम ऑफ द मीरासीडियम, बट आई कैन इवन शो यू ऑन द कंप्यूटर कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑफ द मीरासीडियम इज़ देयर एंड दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मीरासीडियम। ये देखो, ये इसका लार्वा जो बन जाता है दैट इज़ द मीरासीडियम इज देयर। ये देखो, दिस इज़ द मीरासीडियम लार्वा। ये लार्वा स्पोरोसिस्ट से निकलता है। ये तब निकलेगा जब स्पोरोसिस्ट जो है जो कि उसके फीकल मैटर से आई है वो गोबर में आ जाती है साथ ही, अगर वो उसको पानी मिल जाए। मीरासीडियम लार्वा जो है स्विम करता है और स्विम करते करते दे लुक फॉर एन इंटरमीडिएट होस्ट
वो जो इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज प्लेनोर्बिस, ये प्लेनोर्बिस है, ये एक मोलस्का के अंदर आता है, ये इसके अंदर घुस जाता है, इसके अंदर मीरासीडियम लार्वा घुस जाता है, क्योंकि मीरासीडियम लार्वा के अंटीरियर एंड पे एक पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो, ये एपिकल ग्लैंड जिसको आप कहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एपिकल ग्लैंड दे मेक ए होल इन द प्लेनोर्बिस. व्हाट इज प्लेनोर्बिस? प्लेनोर्बिस इज बेसिकली एक स्नेल है, एक स्नेल है, इसके अंदर घुस जाएगा. जब ये इसके अंदर घुस जाता है तो ये जो है एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. वो लार्वा स्टेज है स्पोरोसिस्ट, ये लार्वा स्टेज है स्पोरोसिस्ट. इस स्पोरोसिस्ट के अंदर आप देख रहे हो जर्म सेल्स बनते हैं, इस स्पोरोसिस्ट के अंदर जर्म सेल्स बनते हैं. और जब स्पोरोसिस्ट के अंदर, क्योंकि स्पोरोसिस्ट भी एक लार्वा स्टेज है, जब उसके अंदर जर्म सेल आ जाते हैं, जब लार्वा स्टेज के अंदर जर्म सेल्स आ जाते हैं, जर्म सेल्स का आना एक अडल्ट करैक्टर माना जाता है. जब उसके अंदर जर्म सेल्स आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नियोटेनी. और खाली जर्म सेल्स ही नहीं आते, ये जर्म सेल एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज बना लेते हैं. देखो ये जर्म सेल्स बनाए हुए हैं और एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज बनाई है. जब एक लार्वा स्टेज के अंदर जर्म सेल आ जाएं उसको बोलते हैं नियोटेनी. जब वो जर्म सेल एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज बना दें एसेक्सुअली तो इसको हम बोल देते हैं पार्थिनोजेनेटिक पीडोजेनेसिस. मैं फिर से बता रहा हूँ, जब लार्वा के अंदर जर्म सेल आ जाएं इट इज़ कॉल्ड नियोटेनी. And that when this germ cell asexually form the next larva stage, so this phenomena is called as an parthenogenetic pedogenesis. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, जब एक लार्वा अपने अंदर दूसरा लार्वा बना देता है थ्रू जर्म सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड, तो इसको हम पार्थिनोजेनेटिक पीडोजेनेसिस भी कहा जाता है. अब आपने देखा स्पोरोसिस्ट के अंदर नेक्स्ट लार्वा स्टेज आ गई, डेट इज कॉल्ड एज एन रीडिया. ये रीडिया बाहर आ जाती है, बाहर मतलब स्पोरोसिस्ट से बाहर आ जाती है, अभी वो प्लेनोर्बिस के अंदर ही है, ठीक है ना. मैं रीडिया का आपका मेन स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. दिस इज द, यू विल सी दिस इज द रीडिया. ये देखो रीडिया है. अब रीडिया के अंदर भी जर्म सेल्स आए, ये देख रहे हो लिखा हुआ है जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स ने नेक्स्ट लार्वा स्टेज बना दिया, डेट इज कॉल्ड एज एन सर्केरिया. एक लार्वा के अंदर दोबारा से एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज बन गई, डेट इज सर्केरिया. सर्केरिया भी जो है इस बर्थ पोर होते हैं, इससे सर्केरिया बाहर आ जाता है, इससे सर्केरिया बाहर आ जाता है. और ये सर्केरिया फिर स्नेल से भी बाहर आ जाता है. दे वन कम आउट फ्रॉम द स्नेल, और वो पानी में स्विम करता है. पानी में स्विम करते करते वो पानी में कोई भी वेजिटेशंस होती है तो उसके ऊपर जाके सेटल हो जाता है और एक नेक्स्ट लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैं कहता हूँ मीटा सर्केरिया. वो नेक्स्ट लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको मैं कहता हूँ मीटा सर्केरिया. ये किसी पत्तों पे सेटल हो जाएगा. बाई चांस किसी शीप ने, नई शीप ने वो पत्ता खा लिया जिसके ऊपर मीटा सर्केरिया था, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, तो जैसे ही ये मीटा सर्केरिया उसके अंदर जाएगा तो वो पूरा का पूरा फुल फ्लैश्ड फेस्यूला हेपेटिका के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसके लाइफ साइकिल में आपने देखा दो होस्ट आए. एक होस्ट था दैट वाज द पहला होस्ट आया दैट वाज द शीप, और शीप के अंदर आपने देखा, ठीक है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो वो उसका प्राइमरी होस्ट आया. उसके बाद आपने दूसरा होस्ट देखा जिसको हमने कहा प्लेनोर्बिस, प्लेनोर्बिस फ्रेश वाटर स्नेल, जिसको मैंने कहा प्लेनोर्बिस कहा, तो वो उसका सेकेंडरी होस्ट हुआ, ठीक है ना. इसके लाइफ साइकिल में आपने देखा दो होस्ट आए. एक प्राइमरी होस्ट आया, प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फिर एक सेकेंडरी होस्ट आया जो कि प्लेनोर्बिस था. प्राइमरी होस्ट क्या थी? शीप, और सेकेंडरी होस्ट क्या था? प्लेनोर्बिस, ठीक है ना. जिसके भी लाइफ साइकिल में दो होस्ट आते हैं उसके लाइफ साइकिल को कह देते हैं हम डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. ये देखो मैं इसका लाइफ साइकिल बताता हूँ. ये अडल्ट, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. अडल्ट फ्लूक इन ए शीप, स्टेजेस इन शीप. ये इसने देखा शीप ने कैप्सूल प्रोड्यूस किए, कैप्सूल बाहर आ गए, कैप्सूल, ठीक है ना, बाहर आके मीरासीडियम बन गया. मीरासीडियम जो है पानी में था, ठीक है ना. मीरासीडियम एंटर कर गया किसके अंदर? स्नेल के अंदर. स्नेल के अंदर एंटर कर गया, वो कन्वर्ट हो गया स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट से बन गया रीडिया. स्पोरोसिस्ट के अंदर ही रीडिया बन रहा है, हमने देख लिया. रीडिया के अंदर ही सर्केरिया बना, मतलब एक लार्वा नेक्स्ट लार्वा स्टेज बना रहा है. सर्केरिया जो है स्नेल से बाहर आ जाएगा, पानी में स्विम करेगा, पानी में स्विम करेगा, और फिर स्विम करते करते अगर कोई वेजिटेशन मिल गई उसको तो वहाँ पे वो सेटल कर जाएगा. उस वेजिटेशन को अगर शीप खा लेती है तो वो मीटा सर्केरिया जब उसके अंदर चले जाएगा तो वो एक अडल्ट शीप फ्लूक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से मैं बता रहा हूँ, अडल्ट शीप
फ्लूक या फेस्यूला हेपेटिका, ये उसके बाइल डक्ट में रहता है। इसने आगे कैप्सूल प्रोड्यूस किए। कैप्सूल आपने देखा बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरे, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से फीकल मैटर से बाहर आ गए, कैप्सूल ओपन में आ गया। कैप्सूल जो है उसने मीरासीडियम को डेवलप किया। कैप्सूल से मीरासीडियम तभी बनेगा जब वो पानी में फीकल मैटर ले होगा। तो मीरासीडियम विल लुक फॉर द इंटरमीडिएट होस्ट। वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है? स्नेल। अगर उसको स्नेल मिलेगा तो वो आगे डेवलप करेगा, अगर स्नेल नहीं मिलेगा तो वो आगे डेवलप नहीं करेगा। मीरासीडियम लार्वा जब स्नेल के अंदर घुस जाता है तो वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोसिस्ट से रीडिया, रीडिया से सर्केरिया, सर्केरिया उस स्नेल से बाहर आ जाता है, स्विम करता है, फिर किसी वेजिटेशन के ऊपर वो सेटल हो जाता है। ठीक है ना, जब वेजिटेशन के ऊपर सेटल हो जाएगा तो उस मीटा सर्केरिया को कोई खा लेता है। कैसे खाएगा? मान लो उस पत्ते को खा लिया, जिस पत्ते पे मीटा सर्केरिया था, दिखता थोड़ी है, तो वो जैसे ही वो पत्ता उसके अंदर जाएगा तो मीटा सर्केरिया भी उसके अंदर चल जाएगा और वो ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, और ये जो था इसके फेस्यूला हेपेटिका के बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। तो इसमें आपने देखा कई सारी लार्वा स्टेजेस देखी। तो कई बार आपके नीट के अंदर वो जम्बल्ड फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि सीक्वेंस बताइए कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लार्वा स्टेजेस। हम उसको MS मिस RC मल्होत्रा से याद करा देते हैं। M फॉर मीरासीडियम, S फॉर स्पोरोसिस्ट, R फॉर रीडिया, C फॉर सर्केरिया, MT फॉर मीटा सर्केरिया। तो ये सीक्वेंस है लार्वा का। ठीक है, इसका ये मैंने बेसिक करैक्टर आपको करा दिए।